Good evening, friends. Thank you for joining Candidina every evening to follow what's happening in India and abroad. And thank you for sending me your useful comments and suggestions. If you believe in this channel, do hit the like button, share with your friends, and spread the message. Our only mission is to bring you the truth at both sides of the story. Thank you for your support. Today we will be joined by Kajal Hindustani. I'm just waiting for her to join. Meanwhile, before we start today's topic, which is love jihad in Bollywood, I'd like to tell you about the latest case of love jihad. This is the story of Nadiad, Gujarat. In November 2020, a boy, Yasser Pathan, made a fake profile by the name of SC Hindu on Facebook and sent a friendship request to a 24-year-old SC girl who was a nursing student. Since the boy was from the same caste, she accepted the friend request and both started to date each other. Now, she showed her beautiful, she was full of dreams and she spoke about all her dreams and her future. And he told that he has contacts in Poland and that he would send her to Poland for further studies. One day, the boy told her that he was arranging her admission in Poland and gave her a visa of Poland that he got through one of his friends from Poland. He asked her to arrange rupees 5 lakhs for travel, visa expenditure, etc. She told this to her parents, and parents sold their jewelry and gave this to her. So it was the boy told her that the flight will go via Dubai. So she boarded the flight and landed at Dubai, where she got to know the truth that the boy whom she was in love with was not a Hindu, but a Muslim boy, Yasser Pathan. She was kidnapped at Dubai. The woman was sexually exploited in Dubai and sent to various customers. Yasser threatened her to kill her if she tells anything to the police. One day she threatened to tell everything to Dubai police. After exploiting her at Dubai for a long time, he brought her to Nadiad. He chained her in a house and used her as a sex toy. In that house, Yasser's father, brother, and friends kept raping her. Whenever they desired, they used to rape her. Yasser's mother and sister also helped them. They called her kafir and asked her to convert to Muslim and read kalma. Okay, so I think Kajal has just joined me, so I'll just add her and then we'll just continue with the small case. Welcome, Kajal. Yeah, Yeah, hi, how are you? fine. Namaste. Yes. So, Kajal, just before you came, since we were just waiting for you, I was just telling them about a case where, a love jihad case, where a man called Yasser Pathan fooled a woman, by telling her that he would take her to Poland to study, and he would arrange his Meenaji, visa. can you speak a little bit loudly because I'm, not able to hear you. Okay. So this boy, he said that he's from the same caste as her, a Hindu, and he said that he'll take her to Poland where she can study. Okay. And she was given the visa and said that she would have to travel via Dubai. Okay. So he said that you give me 5 lakh rupees, I'll arrange for everything, and he arranged for everything. And her parents sold their jewelry and gave her the money. Now, when they took her to Dubai, it is there that she realizes that this man was not a Hindu, that his name was Yasser Pathan, and that he was a Muslim, and she was kidnapped in Dubai. Here she was sexually exploited in Dubai, sent to various customers. Then Yasser threatened to kill her if she told anything to the police. One day she threatened to tell everything to the Dubai police. After exploiting her at Dubai for a long time, he brought her to Nadiad. Then he chained her to the house and used her as a sex toy. In that house, Yasser's father, brother, and friends kept raping her. Whenever they desired, they used to rape her. Yasser's mother and sister also helped them. They called her a kafir and asked her to convert to Muslim and read kalma. One day, a person listening to her screams told the police, and the police rescued her on the 24th March of 2022, where she told everything to police. Now, Yasser is absconding. His family members, Jamir Khan Pathan, the father, Faisal Khan Pathan, the accused brother, and his mother, Shehnaz Khan Pathan, Suraya Khan, and several others have been arrested. The girl is with the family. The girl is a Dalit, but not a single Dalit leader
Jignesh Mevani, Dilip Mandel has raised their voice for her. The peaceful, your people are behind Hindu women in this manner. Now, I think the government should think of linking social media account with Aadhaar number so that these people cannot exploit young girls. So this is just, I wanted to give a preface to what we are going to talk about today, Kajal. So as we were waiting for you, I just wanted to give them the taste of the latest case. This is the latest case of how young girls are fooled, by men who say they are Hindus and then how they are exploited. Meena ji, the right now what you are discussing about that Nadiyad case, it's belong to Gujarat, Yeah. and 5-6 दिन पहले की ये घटना है, and I know in and out everything about this issue, because some Hindu संगठन involved in this, and लड़की को FIR इसलिए हुई क्योंकि हिंदू संगठन इन्वॉल्व थे, एंड 10 आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं. और जिस तरह से आपने पूरा इसका एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही बात कही आपने कि कैसे एक लड़का जो है लड़की को फेसबुक से इसको पीछा किया इसका, और फेसबुक से इसको रिक्वेस्ट भेजी, फिर इसको फॉलो करने लगा क्योंकि बिलोंग्स टू सेम सिटी, एंड देन उसने मतलब उसको फंसाने की कोशिश की. और हमारी लड़कियां जो क्या है बड़ी वनरेबल है. 12th के बाद में उसने नर्सिंग कोर्स किया था इस लड़की ने, और इसको पहले से ही विदेश जाने का होता है ना, सबकी एक फैंटेसी, वैसे इस लड़की की फैंटेसी थी कि इसको विदेश जाना है. तो उस लड़के ने देख लिया कि इसकी फैंटेसी है विदेश जाने की, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स का जो कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो इजी से ग्रैब कर सके, तो देखा तो लड़के ने इसको फिर उसी एंगल पे बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू करे. अब क्योंकि लड़की बोल तो नहीं सकती अपने पेरेंट्स को कि शी इज इन अ रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम बॉय, सो पूरा आइडिया कॉन्स्पिरेसी जो है इस लड़के की थी कि पोलैंड जाना है पढ़ाई करने और जॉब करने, दोनों साथ में. आप ये बोल रहे हैं कि वो लड़की को पहले से ही मालूम था कि ये मुस्लिम लड़का है? या अच्छा. जब दोस्ती करी तब वाल्मीकि मीन्स उनके ही समाज का बताया उसने वाल्मीकि, बट लेटली शी got to know कि he is a Muslim boy, and then उसको पता चला कि भाई अब यहाँ पे जो है पेरेंट्स तो ऑब्वियसली अलाउ नहीं करेंगे, तो पूरी एक स्टोरी कुक करी, और स्टोरी ऐसे कुक करी कि पोलैंड जो है वो पढ़ने और स्टडी करने और जॉब करने जाना है, और लड़के ने जो है फेक वीजा बनाया. इसमें वो जो आप अरेस्ट बोल रहे हो ना, 10 लोग अरेस्ट करे, उसमें एक वो वीजा बनाने वाला भी अरेस्ट हुआ है. फेक वीजा बना के अपने पेरेंट्स को दिखाया, और वो गरीब माँ बाप ने बेचारे ने अपनी मरण मूड़ी, जिसको हम बोलते हैं कि जो एंड के लिए, लाइफ के अंत के लिए जो रखी होती है, उसको हम गुजराती में बोलते हैं मरण मूड़ी, एंड के लिए. तो वो सब कुछ बेच बाच के 5 लाख रुपए लड़की को दिए. उनको लगा कि भाई हमारा घर ऊंचा आ जाएगा, पढ़ लेगी, बाहर जाएगी तो कुछ करेगी. उस लड़की ने वो 5 लाख पूरे के पूरे इस लड़के को दे दिए. लड़के ने कहा कि तुम दुबई जाओ, मैं दुबई आऊंगा पीछे से, और हम दोनों वहां दुबई में शादी कर लेंगे, और उसके बाद में तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई जो है मैं वहीं पे करवाऊंगा. लड़की को तो विदेश जाना था, इतनी बेवकूफ लड़की के उसको मैटर नहीं करता पोलैंड हो दुबई हो, बस भारत में पता नहीं इनको क्या तकलीफ थी कि इनको भारत से बाहर जाना था, उसमें भी गुजरात जैसे स्टेट से. पता नहीं, इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है, इतना प्रॉस्परस स्टेट है. अब वो दुबई में गई लड़की, वो लड़का 2 दिन हो गया आया नहीं. वो लड़की जिस होटल में रुकी थी, बहुत ही गंदी होटल में उसको रखा था जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता था, तो एक इंडियन वेटर ने उसको इशारा करा लड़की को कि आप यहाँ से चली जाओ, इस होटल में बहुत गलत काम होते हैं, आप मुझे अच्छे घर की लग रही हो. लड़की उसी वक्त वहां से निकल गई. उसने लड़के को बोला कि तू मुझे कहीं और मतलब ट्रांसफर मी एट सम अदर प्लेस, बट नॉट इन दिस होटल. तो लड़के ने उसको, आपको तो पता है इनके रहते ही है सारे पंचर वाले वहां पे, तो उन्होंने कोई मुस्लिम फैमिली में इस लड़की को रखा. ये लड़की 7 दिन तक एक मुस्लिम परिवार में रही वहां पे. ना तो वो लड़का आया, ना ही कोई वो, मतलब इसी तरह से इसको घुमाता गया बार बार, मतलब झूठ बोलता गया कि वीजा या टिकट या ये वो सारे इश्यूज करता गया. और उसके बाद में वो जो 7 डेज के लिए जिस फैमिली में रही थी, वहां पे उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ.
और वो वहां से भाग के निकल के क्योंकि लड़का तो टिकट भेज नहीं रहा था, अपने हिसाब से एडजस्ट करके वो वापस नडियाद पहुंची। उस लड़की को इतने धोखे मिलने के बाद भी, वो बेवकूफ लड़की को फिर भी इस पे अंधा ट्रस्ट है। वो कहते हैं ना, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। माई वॉज लाइक शाहरुख खान, कि वो तो शाहरुख खान जैसा था। अभी उसको इधर नडियाद में एक सिंगल खोली में रखा, मतलब खोली काइंड ऑफ 1 by 1 का रूम, छोटा सा, और उसको बाहर से ताला लगा के वो लड़का जाता था। माँ बाप को लगा कि लड़की पोलैंड है, और बाहर से लॉक लगा के जाता था। जब मन करता था आता था, उसके साथ में उसको उसका रेप करता था। मीनवाइल उसकी जो घर की महिलाएं थी, उन्होंने उसको जबरदस्ती बुर्का पहनाना, हिजाब पहनना और नमाज करना का प्रेशर दिया, और वो उससे करवाते भी थे 4 महीने तक। और रेगुलर वो लड़का जो है उसका रेप करता था। जब लड़की पीरियड्स में थी तो भी उसका रेप करता था। और जिसको बोलते हैं कि अननेचुरल सेक्स, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगी, जिसको हिंदी में कहते हैं अप्राकृतिक तरीके से भी उसका यौन शोषण करता था, और जबरदस्ती करता था, मारता पीटता भी था। एक दिन क्या हुआ कि लड़का बाहर गया आउट ऑफ स्टेशन, और लड़के के जो घर की चाबी अपने घर पे देकर गया, तो उसका बाप और भाई दोनों घर में घुसे और लड़की को इनएप्रोप्रिएट तरीके से गलत जगह छूने लगे, और उसके कपड़े खींचकर, जो है, जो लड़का जो था उसका भाई, वो उसके दोनों पैर स्प्रेड कर रहा था, और उसका बाप जो है उससे रेप करने की कोशिश कर रहा था। वही लड़की ने बहुत जोर से चिल्लाया, क्योंकि रूम बहुत छोटा था, इसलिए उसके लिए भागना आसान हो गया। और भाग के लड़की सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहीं से उनके पुलिस के फोन से अपने पेरेंट्स को फोन करती है। पेरेंट्स वहां आते हैं। 10 आरोपी के ऊपर एफआईआर होती है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट जो है महिलाओं के मामलों में और स्पेशल ये सब मैटर में बहुत संवेदनशील है, वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स विमेन। सो तुरंत ही एफआईआर हुई और वो गिरफ्तारी हुई, लेकिन लड़का जो है वो अभी तक भागा हुआ है। पूरा परिवार इनका शामिल इस कांड में, इस कुकर्म में। Now, can you imagine the plight of that girl? Will be she able to trust anyone in his life, in her life? कि किसी भी लड़के से क्या वो दोबारा प्यार और विश्वास कर पाएगी? क्या वो पिता जिसने बेटी पे इतना भरोसा किया और 5 लाख रुपए दे दिए, क्या वो पिता दोबारा अपनी बेटी पे भरोसा कर पाएगा? क्या वो माँ दोबारा अपनी बेटी को जो मांगे वो इच्छा पूरी करती थी, या अपना सब कुछ अपने गहने पर गिरवी रखकर उसको पैसे दे दिए, क्या दोबारा वो माँ इतना सारा त्याग और बलिदान अपनी बेटी के लिए कर पाएगी? और वो समाज उसको क्या रिस्पेक्ट देगा जब वो अपने पेरेंट्स को ठग कर, शी लिटरली ठग्ड हर पेरेंट्स, पैसे लिए उनसे, गरीब माँ बाप से। तो जो अपने पेरेंट्स की लॉयल नहीं हुई, क्या उसको कभी कोई लॉयल इंसान लाइफ में मिलेगा जो उससे लॉयल्टी रखेगा? And how can I expect a girl who itself is not loyal to her family, and she is expecting that some other boy will loyal to her? How can it possible? So ये entire issue बहुत अभी गुजरात में हुआ। रेगुलर इतने लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, और इसका बॉलीवुड कनेक्शन है, इसका टेररिस्ट कनेक्शन है, इसका फॉरेन फंडिंग आती है, टेररिस्ट कनेक्शन होता है, सेपरेटिज्म, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, ये सब कुछ मिलाकर एक लड़का तैयार किया जाता है बकायदा हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। और एक बार वो फंसी, उस लड़के को 5 लाख तो लड़की से मिले, और जो उनके मुल्ला मौलवी उसको 5-7 लाख रुपए देंगे, वो अलग। तो इन पंचर बनाने वालों के लिए तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, दिन के 100 रुपए नहीं कमा पाते। सो दिस इज द बिग थिंग फॉर देम। बट कट इट इन शॉर्ट, एक लड़की की पूरी लाइफ खत्म हो गई। इसलिए काजल जी, see, it's very important that this should be taught in schools, as Sharmila is saying. इसका अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्रीज के वजह से और स्कूल्स में सब दिखानी चाहिए। अभी आज का विषय है कि ये कैसे बॉलीवुड में it has come in such a big way, and that is what is influencing these girls, because what you said is that this girl is so stupid that she couldn't believe in her parents and her well-wishers. She believed in a stranger. तो इसमें से ही पता लगता है कि ये लड़की के आंखों पे किसी ने धूल फेंका है, तो यही होगा वजह। तो could you speak about the connect with Bollywood?
देखिए, बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी फिल्म चले या ना चले, उसको उसका एजेंडा दे दिया गया। सी, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप का एक ग्रुप बन चुका है, सबको अपने अपने रोल डिवाइड करके दिए हुए हैं। स्वरा भास्कर अपने अलग रोल में है, शाहरुख खान अपने अलग रोल में है, आमिर खान अपने अलग रोल में है, जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो अपने अलग अलग, करण जौहर टाइप के अपने अलग रोल में है। फिर इनकी एक पत्रकारों की गैंग होती है, जर्नलिस्ट की, जिसमें राजदीप सरदेसाई और ये मैक्से अवार्ड वाला, ये सारे राना अयूब से लेके सब लोग, बरखा दत्ती अपने एक अलग रोल में है। फिर इनकी एक स्टूडेंट विंग होती है, जेएनयू टाइप में, इनके टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, जो अपना एक अलग रोल निभाते हैं। फिर जिग्नेश मेवानी जैसे अलग एक ठेकेदार खड़े कर देते हैं, सो कॉल्ड दलित ठेकेदार, ये इनके अपने रोल होते हैं। और इनका एक पॉलिटिकल ग्रुप भी होता है जिनके अपने अलग रोल होते हैं, जैसे कि आप राहुल गांधी को देखो, या फिर आप समाजवादी पार्टी या लालू प्रसाद का, इवन नीतीश कुमार का, इन सबको एक अलग रोल दे दिया गया है। सो ये पूरा एक एजेंडा है कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप का। फंड पूरा बाहर से आ रहा है, सबके अपने अपने रोल डेजिग्नेटेड है। जैसे ही मतलब एक घटना घटती है इस तरह से, अगर विक्टिम जो है वो मुस्लिम है और कल्प्रिट हिंदू है, ये सारे अपने अपने रोल में अपने अपने जो इनका जो भी कैटेगराइज करे हुए है, उसमें ये अपना अपना शुरू कर देंगे। बॉलीवुड क्या करेगा, प्ले कार्ड लेके आएगा। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नारे लगाएंगे। पत्रकार जो है वो छापेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज दिखाएगी, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लाइक मलाला है या ग्रेटा है या ये मियां खलीफा है, ये अपना एक अलग ट्वीट कर और एक वो टूल किट वाला एक पूरा चलेगा। वही जब सामने परिस्थिति उल्टी होती है और हिंदू लड़की होती है विक्टिम, और जो कल्प्रिट है वो मुस्लिम होता है, ये सब जिप लगा के बैठ जाते हैं। फिर मैटर नहीं करता वो लड़की दलित की है या कोई भी है। दलित की लड़की पर एजेंडा कब सेट होगा, जब सामने जो कल्प्रिट होगा वो हिंदू जनरल होगा, स्वर्ण हिंदू होगा। मगर अगर दलित की लड़की है तो फिर जैम भीम और जैमीम वाला जो एजेंडा चलता है वो फिर कैसे चलेगा। और इन सबको फंडिंग होती है। बॉलीवुड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है फिल्म चले या ना चले, उनको फिल्म में पंडित की लड़की दिखानी है और घोड़ा चलाने वाला खच्चर मुस्लिम लड़का दिखाना है, जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है। और वही पंडित की लड़की और उसकी फैमिली एजुकेटेड है बट वेरी कंजर्वेटिव। तो ये एक पूरा सीन क्रिएट होता है। जैसे आपने तूफान फिल्म में देखा कि वो लड़की जो है हाईली एजुकेटेड डॉक्टर है, और उसके सामने वो जिस छिछोरे लड़के के प्यार में पागल हो गई है, गली का सड़क छाप है, मगर गली का सड़क छाप होकर भी उसको बहुत संस्कारी बताया है। और लड़की के बाप को बहुत सुपर एक्सट्रीमिस्ट दिखा दिया गया है, जो जाति सूचक शब्दों पे टिप्पणी करता है, जो दूसरों को नीचा समझता है और ब्राह्मणों को ऊंचा समझता है। वही आपने आर्टिकल 15 में देखा होगा। तो ये इनके एक पैटर्न है। वही आपने पाताल लोक में देखा होगा। और वही एजेंडा आपने अभी अतरंगी में देखा होगा, जो सारा अली खान और अक्षय कुमार ने जो फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो इसमें स्टोरी और एजेंडा सेट होता है, ऊंचे जात की लड़की होती है, मुस्लिम का लड़का होता है, और ये एजेंडा होता है। बट इन रियल उल्टा होता है। ये फिल्मों में तो हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, बट इन रियल में जो ये एंडिंग होती है, शादी के बाद का जो षड्यंत्र शुरू होता है हिंदू लड़कियों के साथ, उनको मारना पीटना, प्रेग्नेंट करके छोड़ देना, बच्चे पैदा करवा के छोड़ देना, सूटकेस में उनका आना। मैं आपको एक लेटेस्ट घटना बताती हूँ। एक लड़की 3-4 महीने पहले गुजरात की है, एक मुस्लिम लड़के से जाती है, उसको बहुत समझाते परिवार वाले, वो नहीं मानती, और एक दिन वो भाग के चली जाती है। सडनली 4 महीने पहले उसके इंस्टाग्राम से मैसेज आता है उसकी सिस्टर को, वो अपनी किसी मुस्लिम दोस्त के पास मैसेज करवाती है कि मेरी यहाँ पे हालत बहुत खराब है, प्लीज मुझे आके ले जाओ, मैं इस लोकेशन पे इस एड्रेस पे रह रही हूँ। जैसे ही पेरेंट्स पुलिस में जाते हैं और पुलिस ये पूरी जो छानबीन कर रहा है, एलसीबी कर रहा है, जैसे ही पुलिस उस लोकेशन पे जाती है, लड़की गायब। पड़ोसी कहते हैं कि कल तक यहीं पे थी 2 दिन पहले, आज अचानक ये गायब हो गए, क्योंकि लड़के को पता चल गया कि वो लोग आ रहे हैं इसको लेने। अब लड़के को ये बात किसने बताई? डेफिनेटली पुलिस का कोई आदमी अंदर होगा जो इनको जानकारी दे रहा है।
मतलब इनका नेक्सेस है, इनका पुलिस में भी नेक्सेस है, सिविल सर्विस में इनके नेक्सेस है, जुडिशरी में इनके नेक्सेस है, एवरीवेयर सब जगह इनके नेक्सेस है जो इनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और वो लड़की हाथ में नहीं लगी, वो लड़की आज किस कंडीशन में है, क्या हालत में उस पर क्या बीत रही है, हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो कैसे ये पूरा सिस्टम लग जाता है ये कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप का, ये समझना होगा। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए जैसे आपका अपना एक रोल है मीना जी, आप भी जो कर रही हो, आप हमारा साइड का जो सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप जो वन साइड का जो नैरेटिव है, तो आप सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रही है, आपका अपना रोल है, आप अपने रोल में एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरा अपना एक रोल है कि मेरे को ये काम मैंने खुद से वॉलंटियरली लिया है कि मैं ऐसी लड़कियों को रेस्क्यू करूंगी, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। हमारे जर्नलिस्ट जो है, जो हमारे साइड की स्टोरी लिखते हैं, जैसे ऑप इंडिया है या TFI पोस्ट है या ट्रूनिकल है, ये अपने साइड की स्टोरी लिखते हैं और बताते हैं। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि जो रियल स्टोरी दिखाती है, टाइम्स नाउ हो, रिपब्लिक हो, सुदर्शन चैनल हो, ये वो स्टोरी दिखाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट अलग लिख रहे हैं, हमारे ब्लॉगर अलग लिख रहे हैं। तो ये सब अपने अपने रोल में, इसी तरह से जब हम निरंतर काम करेंगे तो अवेयरनेस 100% आएगी। मगर जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेट मी वेरी क्लियर, कि हम सोचते हैं हमारी बच्ची या बेवकूफ, बच्चों की गलती नहीं है। ना तो उनको इस सोसाइटी ने अवेयर किया, ना उनको उनके समाज ने अवेयर किया, ना उनको स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स ने अवेयर किया, ना ही हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अपना अपना धर्म जो है निभा पाए पूरी जस्टिफिकेशन के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, आप भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हम हर वो आखिरी लड़की तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारी बात उस आखिरी लड़की तक नहीं पहुंच पा रही, या शायद कहीं ना कहीं हम भी गलती कर रहे हैं क्योंकि हम उनको समझा नहीं पा रहे सही तरीके से। तो हम सबको चेंज करना पड़ेगा। बच्चे वनरेबल है, वो ब्लैंक स्लेट है, उस पर आप जो लिखोगे वो छप जाएगा। So it's our duty to make them understand कि what is love jihad, how they propagate their agenda, from where the funds are coming, what Bollywood is doing, how they are involved in this, what other gang are doing. तो ये entire ये सारी चीजें जो है अपने में जुड़ी है और इनका एक वो चलता है। Also, मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये जो शोज है, जैसे गेम शोज या बिग बॉस के जैसे प्रोग्राम्स, जो लाइव शोज है, उसमें तो ज्यादातर ये लव जिहाद दिखाते हैं। जहां मोस्ट रीसेंट केस था सिद्धार्थ शुक्ला का। तो सिद्धार्थ शुक्ला, वेरी हेल्थी पर्सन, डाइड, एंड आई नो दैट यू डिसएग्री विथ मी ऑन दिस, काजल, बट there is something very much more to it. And it's also the fact is that, see, it's not only Siddharth, but many more men, or women who are caught in this. And I'm not saying only women, there are men also who are caught in this. For example, Sushant was a victim, was a victim of this Urdu wood. And still we are unable to find the reason behind his death. It's again a mystery. And there are many mystery. इनका एक गैंग बना हुआ है। लेकिन आपने जैसे अभी रियलिटी शो की बात करी बिग बॉस का, इसी तरह से अभी एक लॉकअप करके शो चल रहा है, कंगना रनौत कर रही है, जो कि ऑल्ट बालाजी के बैनर पर हो रहा है। उसमें उनको मुनावर फारूकी को बुलाया है। हाँ। अब वो मुनावर फारूकी अपना विक्टिम प्ले कर रहा है, उसको तो लाइमलाइट मिल गई, और ज्यादा मिली कि नहीं? मुनावर फारूकी को कल तक 2 लोग जानते थे, आज उसको 2 लाख लोग जानते हैं। और उसको अब काम भी मिला, पैसा भी मिला इस शो से, और वो बकायदा अंदर लव जिहाद कर रहा है। हिंदू लड़कियां जो है उनके साथ में वो कनेक्शन अपने बना रहा है, और कंगना वो कनेक्शन खुद जोड़ रही है उनके। नाउ कैन यू इमेजिन, हम कंगना पे भरोसा करते हैं, और ये कंगना उस शो में क्या कर रही है? काजल, we gave up on Kangana long time back. We could see through her game. And आज ना विवेक अग्निहोत्री का ही भी यही रोल होगा, आप देखिए, क्योंकि ऑलरेडी कार्तिक ने उसको प्रूव किया है कि अभी वो दूसरा एक रास्ता पे जा रहा है। ये पहले भी उसने किया था, जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, तब उसने जाके एकता कपूर के साथ बर्थडे विशेस और सब किया पैसा के लिए, फिर ये बनाया, फिर अभी एक और ही इज गोइंग टू प्ले अनदर यू टर्न। सी, विवेक अग्निहोत्री को आप 2014 से पहले देख लो कि वो कहता है कि मैं एथिस्ट था। तो अगर आप एथिस्ट है तो आप हिंदू देवी देवताओं को ही गालियां क्यों बकते हो?
If you are atheist, why only Hindus? Why you are Exactly. targeting always Hindus? I am talking about the entire this atheist group, this communist group or liberal group, right? Why don't you dare to target Christian and Islam? Yeah. That's my point number one. Number two, if you are atheist, why you went to dargah or something like masjid where Vivek Agnihotri try to give this pose like ibadat wala pose, and he used that peace and hashtag freedom. What is the meaning of hashtag freedom? So if you pray Hindu god, you are you are conservative, you are regressive, you are apologetic. And when when you pray some other god like Islam and in Christianity, so you are atheist, you believe in freedom, you believe in the most peaceful slogan Allahu Akbar, and then you itself prove कि एथिस्ट है, तो आप क्यों फिर वहां पे जाके प्रार्थना और इबादत कर रहे हो? आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। तो और विवेक अग्निहोत्री के पुराने ट्वीट्स उठा के देख लो। देखिए, मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू है, हम बचपन से हिंदू है, हम बचपन से अपने भगवान को मानते हैं, ठीक है, कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है, लेकिन आपने और मैंने कभी अपने भगवान को गाली नहीं बकी है, राइट? हो सकता है कि 2014 के बाद विवेक अग्निहोत्री में सदन बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन ऐसा कैसा आया? हम पहले घर में जय श्री राम बोलते थे दबे शब्दों में, क्योंकि एक फेनेटिक ग्रुप बाहर था जो गला काट देता था जय श्री राम बोलने वालों पर या उन पर गोलियां चला देता था। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए तो हम खुलकर जय श्री राम बोलते। मगर हम घर में भी पहले चोरी छुपे भी बोलते तो थे ना, दबी आवाज में भी बोलते तो थे ना, दबी आवाज में भी राम जी को पूजते थे। आज खुल के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और माइक लगा के बोलते हैं हनुमान चालीसा। मगर ये कैसा विवेक अग्निहोत्री दोगला कि पहले वो गालियां बकता है, वो किसी और धर्म की पूजा और इबादत करता है, सडनली फिर वो अपना अर्बन नक्सल वाला एक वो एजेंडा लेकर घुस जाता है इसमें, और फिर उसको एकदम से हिंदुओं से बड़ा प्यार। ये राम मंदिर के खिलाफ था। आप इसका स्टेटमेंट पढ़ो 2015-16 में, इसने राम मंदिर के लिए बोला है कि क्या जरूरत है मंदिर की, अस्पताल बनाओ। ऐसे कैसे चेंज हो सकता है? भगवान के लिए प्यार बढ़ सकता है, पर बिल्कुल जीरो से एकदम कैसे बढ़ सकता है, या सडनली हिंदुत्व ऐसा कैसे जाग सकता है? तो देखिए, जो 99 बार गलत बोलता है और एक बार सही बोलता है वो खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो 99 बार सही बोलता है और एक बार गलत बोलता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और ये जैसे इच्छाधारी हिंदू बने बैठे हैं ना, ये ज्यादा डेंजरस है। यही विवेक अग्निहोत्री जब ड्रग्स केस में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पकड़ा जाता है, आप इसके ट्वीट्स उठा के देख लो, क्योंकि ये सब एक ही उसके नदी के मगरमच्छ है। शाहरुख खान बड़ा मगरमच्छ है, इसलिए उसको खुश रखना पड़ेगा इन छोटे मगरमच्छों को, इन क्रोकोडाइल्स को। वो बड़ा है, ये छोटा मगरमच्छ है। इसलिए जो मगरमच्छ का बेटा आर्यन खान है पकड़ा जाता है तो ये उसको जस्टिफाई करते हैं, ये उसको डिफेंड करते हैं। साथ में विवेक अग्निहोत्री ये ट्वीट करता है कि जो ये आईबी है, सीबीआई है, और ये जो नार्कोटिक्स की जो पूरी गवर्नमेंट बॉडीज है, इन सबको डिसमेंटल करो, ये सब नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा विवेक अग्निहोत्री से प्रश्न है। क्योंकि तुम्हारे बड़े मगरमच्छ, तुम्हारी बॉलीवुड की बड़े मगरमच्छ का बेटा पकड़ा गया है, इसलिए आप गवर्नमेंट बॉडीज को डिसमेंटल करने की बात कर रहे हो। कल को आप बोलोगे कि इस प्रधानमंत्री को डिसमेंटल करो, ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये प्रो इंडिया राइट वाला प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए। तो ये जो है, लोग हमारे क्या है, बड़े भोले हैं मीना जी। हमारे लोग इतने पागल हो जाते हैं कि कोई थोड़ा सा हिंदू का करेगा तो फिर वो इतने पागल होके उसमें मरे जाएंगे कि उनको पता ही नहीं होता है। और यही गलती कंगना के साथ हुई हम लोगों की। मैंने खुद ने कंगना को डिफेंड किया, मैंने खुद ने उसको प्रमोट किया, मैं खुद ने कंगना के फेवर में लड़ी हूँ। करेक्ट। लेकिन अभी जब शिवरात्रि के दिन सदगुरु के वहां पे अली मौला होता है, सदगुरु उसमें नाचते हैं, ठीक है, मैं मान सकती हूँ सदगुरु को हिंदी नहीं आती तो शायद उनकी समझ में नहीं आया क्या बज रहा है, लेकिन कंगना को नहीं पता था। वो तो बड़ी झंडा और मोर्चा लेके घूमती है कंगना। We have raised the question and they have asked us, why are you upset? So I see, they said, do you know the meaning of Maulana? So I said, please don't give me the secular meaning of Maulana. Maulana is Allah. Okay, don't bring Allah into Shivaratri. That's it.
या एंड देन वो सलीम करके जो सिंगर है वो कंगना को बोलता है, डेडिकेट कर रहा है, वो कह रहा है दिस टू लाइन आई एम डेडिकेटिंग टू यू, एंड कंगना वाज लाइक या प्लीज से, एंड ही सेड कि ये जो हुस्न वाले होते हैं ये आज किसी के तो कल किसी के होते हैं, ये कबूतर की तरह होते हैं कि कहीं, वो उसको कबूतर बोल रहा है, वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, एंड शी वाज लाइक या एंड वो शी वाज डांसिंग एंड यू नो एंजॉयिंग सलीम सॉन्ग। और तेरे रश के कमर, वो क्या शिवरात्रि के दिन हम सब उपवास करते, एक पवित्र दिन होता है, महाशिवरात्रि का दिन था, हम सब ने उपवास करा हुआ, और मध्य रात्रि को जिसको 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, 12 से 5 का जो टाइम होता है, ये टाइम हमारे देवी देवताओं का वो स्ट्रॉन्ग टाइम कहा जाता है कि इस टाइम पे साक्षात भगवान आते हैं और वो किसी ना किसी रूप में दर्शन देके जाते हैं। उस वक्त पे आप अली मौला और मेरे रश के कमर और ये दमादम मस्त कैलेंडर बजाते हो। इसी तरह से एक वो है हमारे गुजरात का मोरारी बापू, वो व्यास पीठ पे बैठ के अली मौला करता है। मैं खुद सदगुरु की फॉलोअर हूँ, मैं उनके आश्रम में हर साल जाती थी, मैं वहां पे योगा के कोर्सेज करती थी, और मुझ में इतना पेशेंस, इतना ठहराव, ये सब वहां पे कोर्सेज करने के बाद आया है। लेकिन मैं किसी की अंधभक्त नहीं हूँ। आई विल नॉट अलाउ एनी धर्म गुरु टू डिफेम माय धर्म। इफ दे आर धर्म गुरु, उनका काम है धर्म का प्रचार करना, ना कि हिंदू धर्म को डिफेंड करना। We are also fighting the same war. Okay, Kajal, see, recently, like a day back in Dubai, you see, this Ranveer Singh was there on stage, and Anurag Thakur was also on stage. Now, Ranveer Singh, he does that stupid step, you know, that Anil Kapoor step. Yeah, like this wala. Yeah, I know that. And he asks him to do it. And like a puppet, this minister who is holding two portfolios also does it. This is not the first time, okay? This is many times he has been seen with people like Mauni, as though he is a fan of these people and not a minister. You are seeing so many political people in the present government who are falling at the feet of Bollywood. You know, and this is our weakness, Kaja. This is our weakness. We have a very strong prime minister. We have someone very strong like Amit Shah, JP Nadda and all that. But we have very weak people who are praising Bollywood inside out when they are connected to the cabal. They are connected to the mafia. They are connected to the Urdu word. True, मीना जी. एंड इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि गोवा फेस्टिवल या पता नहीं फिल्म फेस्टिवल कुछ हो रहा था, उसमें अनुराग ठाकुर जो है वो डायलॉग मारता है शाहरुख खान की फिल्म का कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, और वो पूरा उर्दू डायलॉग है और वो चक दे फिल्म का है। चक दे फिल्म ही पूरी वो गलत बनाई, वो जो था वो रियल में एक हिंदू कोच था, लेकिन कबीर खान करके एक वो कर दिया और वो उसी का ही डायलॉग बता रहा है। आप देख लो सॉफ्ट पावर काम कैसे करता है। और हमारे मंत्री जो है वो इस सॉफ्ट पावर में इनको एक पोर्टफोलियो दे दिया है, तो आपको पोर्टफोलियो नाचने और नौटंकी करने के लिए नहीं दिया गया है। पर इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे ही इसमें एंटर हो जाते हैं, वहां की चकाचौंध देखकर ये लोग पागल हो जाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या किया था, आप मिनिस्टर हो के चैंपियन की बोतल ऐसे उठा के फुआरे बनाकर इन हीरो हीरोइन में घुसे जा रहे हो, फेंक दिया ना साइड में उठा के मोदी जी ने। अब मोदी जी का बेचारे का प्रॉब्लम ये कि वो उनके पास में हर कोई मोदी योगी नहीं बन सकता। मोदी जी को किसी ना किसी को इन्हीं टीम में से काम करवाना है। उनको लगता है कि मैं इनको जवाबदारी दूंगा, थोड़ी मैच्योरली हैंडल करेंगे, पर ये लोग वही बेवकूफियां करते हैं। और फिर हर बार तो मोदी जी अब बेवकूफी करी तो कोई इसको उठा के फेंक तो नहीं सकते ना, पोर्टफोलियो दिया है, ठीक है। आपके और मेरे जैसे लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आप रॉन्ग है मिस्टर, दिस इज नॉट योर जॉब, यू आर नॉट देयर फॉर दिस। एग्जैक्टली, एक्सपोज करना चाहिए। और यही आईएनबी मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद में आप देखो कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोपोगेट मूवी बनती है, लव जिहाद पे मूवी बनती है, ये उसको रोक ही नहीं पाते हैं। तो कार्तिक बोल रहा है, कार्तिक बोल रहा है कि टुडे भूमि पेडनेकर says Smriti has done a lot for women of India. Smriti's close friend was responsible for the death of Disha
सालिया. तो यहाँ एक indirect link with the one of the top producers, women producers in Bollywood. Huh? And let me ask you, Kajal ji, see, who is Bhumi? She just came in 1 or 2 films and Smriti is treating her like Bhagwan. For what? What are these people doing? You know, and what has Smriti done for women? You talk about Maharashtra. Almost every day, women are dying like flies. They're being killed. And it is being shown as suicide. You look at so many, Disha, Jia, Janvi Kukreja. You look at, what is that girl's name, Pooja Chavan. So many people have died. And you're saying you are doing upliftment of women? Of which women? First of all, Maybe close Bollywood. all the NGOs. Close all the Maybe NGOs. Bollywood We don't want women. NGOs. See, this is the issue. That's why, कितने पोर्टफोलियो उनसे हटा के आज उनको एक women and children वाला एक पोर्टफोलियो दिया है. लेकिन उसमें भी क्या लव जिहाद के लिए कोई रिफॉर्म या कोई रिवॉल्यूशनर बिल आप बनाकर, अमेंडमेंट बनाकर उसको सदन में पेश किया है एज अ विमेन व्हाट वी से मिनिस्टर? If you are very much concerned about women's situation, see, sanitary pad दिखाना और देना वो जमाना गया. आजकल That is all old age. पता है, Stone age. बहुत साल पुराना हो गया. आजकल गांव में भी लड़कियां सैनिटरी पैड यूज करती है. इवन हमारी डोमेस्टिक हेल्पर्स भी वही यूज करती है. Let me tell you one thing, Kajal. See, there was one police woman called Seema Dhaka. Okay, for a small period, 6 months, she caught 72 children who were trafficked from different places, and she brought them and she saved them. A small girl, maybe in her late 20s, did that. Can't a minister with such a big portfolio in the second term do something like this? सब कुछ मोदी जी को ही करना है. मोदी जी करते हैं ये सब. मोदी जी के नाम पे मलाई खा के पद पे आके बैठ जाते हैं. बट ट्रस्ट मी, भारत को ये 3-4 बहुत अच्छे लीडर्स मिले हैं. मोदी जी, अमित भाई शाह, योगी जी, हेमंत बिश्वा शर्मा जी, बोमानी जी जो हमारे कर्नाटका के हैं, एंड नाउ धामी जी से भी मुझे बड़ी उम्मीद है. उन्होंने आते यूसीसी की बात करी, विच इज गुड. दीज आर द लीडर्स की वी लिटरली हम लोग उनके सामने देखते हैं. नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपने ही पोर्टफोलियो में कितने रिफॉर्म्स लाए और एक क्रांति खड़ी कर दी उन्होंने. तो कहने का मतलब है कि अच्छे हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुत ही कम अच्छे लोग हैं और बाकी के ऐसे ही लोग हैं वेल्ले टाइप के कि जिनको पोर्टफोलियो मिल जाता है और बस वो मटर गश्ती करते रहते हैं हीरो हीरोइनों के साथ में और ये बॉलीवुड की चकाचौंध में. लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि 130 करोड़ भारतीयों ने विश्वास जताया है मोदी जी पर. तो कम से कम मोदी जी के नाम पर वोट लेकर आप पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं तो उस नाम पर कुछ ढंग का काम तो कर लो. मोदी जी आप बताओ, अभी पूरा 1 साल पहले पूरा रिफॉर्म पूरी चेंज करी, टोटल मिनिस्ट्री चेंज कर दी. सेम वे गुजरात में चेंज कर दी. इसी तरह से उन्होंने इससे भी 2.5 साल पहले चेंज करी थी. स्मृति ईरानी आईएनबी मिनिस्टर हटा दिया था, राइट. वो अब ये वाला मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो था ना स्मृति के पास में. ये था एचआर मिनिस्ट्री, वो भी उनसे ले लिया था. फिर टेक्सटाइल, वो भी गया. एंड अब ये विमेन एंड चिल्ड्रन वाला जो है वहां की एमपी. पर आपने वुमेन के लिए आपने कभी लव जिहाद पर सदन में बोला है? नहीं बोला. सुषमा स्वराज जी वाज द ओनली फीमेल हु मतलब जिन्होंने लव जिहाद के लिए लिटरली बोला था. आपने कभी इनको देखा? इन्होंने कभी, स्मृति जी ने प्रश्न क्यों नहीं करा इन बॉलीवुड वालों से कि आप हमेशा पंडित की लड़की और खच्चर चलाने वाला मुस्लिम का लड़का, इनका प्यार क्यों दिखाते हो? कभी निजाम और नवाब की लड़की और चप्पल सिलने वाला किसी मोची से प्यार दिखाओ, क्यों नहीं दिखाते? वैसी भी लव स्टोरी बनाओ. सवाल करने चाहिए. सवाल बहुत है, हम भी जानते हैं ये नया भारत है, जागरूक भारत है. हम मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन मोदी जी के नाम पर बैठकर किसी को मलाई खाने नहीं देंगे आराम से. जी मीना जी. Yeah.
So what you said is so true. And also the fact that, see, unless you root out all the weeds, and we're talking about weeds in the ministry, in your government, okay, when this association has been completely removed, because every time somebody accuses something, immediately they'll show photo of Modi ji with these people, these actors, Karan Johar, producer, Ekta Kapoor, to say that, see, then what is he doing with that? Okay. Now, see, it has changed because Modi has very clearly told Yogi ji, you better start, another film city in UP. We don't want all this kachra here. Okay. Now, see, all the same people have gone to Yogi ji, but they have not started anything there. Why? They are scared that they will be under scrutiny. There will be transparency there. This thing cannot happen there. और इतना पैसा बाहर से आ रहा है, यहाँ पे तो ठाकरे परिवार सालों से इनको संभाल के बैठा है, और इनके गलत धंधों को तो कोई पूछता नहीं है, कोई स्क्रूटिनी आती नहीं है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, कहाँ किसको प्रोड्यूसर। आप सोचो ये कहाँ से इतना 100-200 करोड़ की फिल्में कैसे बनती है, इतना पैसा आता कहाँ से है। ये एक्टर्स को आप बताओ, ये एक्टर क्या एक्टिंग करते हैं, एक हीरोइन का रोल क्या है, गाने में आगे पीछे मंडराती है, बस वही है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को क्या रोल दिया जाता है, यही दिया जाता है, एक आध आइटम नंबर करवा देंगे इनसे, और फिल्म में जो है आगे पीछे मतलब 2-5 मिनट का रोल होगा, उसमें उसको 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कैसे मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहा है ये पैसा इतना। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है पूरे फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के पूरे भारत का, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री या हब है कि जहाँ पे इतना पैसा मिल रहा है किसी को। यहाँ पे लोग 18-18 घंटे की नौकरी करते हैं, फिर भी इतना साल का पैकेज नहीं होता है। यहाँ पे किसी कंपनी के सीईओ की आप सैलरी पूछ लो, उसका इतना पैकेज नहीं। इवन आप रिलायंस के सीईओ का या वहां के जो सुपरवाइजर मैनेजर है उनका इतना पैकेज नहीं होता है। उनका साल का पैकेज 3-4 करोड़ का मैक्सिमम होगा। कोई बहुत हाई प्रोफाइल इंजीनियर होगा जो जबरदस्त होगा तो उसका 5 करोड़। यहाँ पे ये लोग भूमि पेडनेकर जैसे जिन्होंने मतलब कि एकदम लो ग्रेड की 20 करोड़ की मूवी में काम किया है, उनको इतना कहाँ से मिल रहा है। और तापसी पन्नू ने सारी वो लेवल की, उसके पास 300 करोड़ रुपया कहाँ से आया। कैन यू इमेजिन 300 करोड़। राजा मौली की RRR जैसी कोई फिल्म तो नहीं करी, या अल्लू अर्जुन जैसा कोई फेमस एक्टर तो नहीं है कि जो 100 करोड़ फीस लेता हो। तो फिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इन बॉलीवुड वालों के पास में? फिर हाँ, एक और मोडस ऑपरेंडी है जिसमें ये जो आइटम गर्ल्स है ना, वो लोग कुछ बकरे को आइडेंटिफाई करते हैं, सम फूल्स, ऐसे बोलते हैं कि फूल्स जिसको कोई जॉब नहीं हो सकता है, दे मस्ट बी ऑल अनएम्प्लॉयड, सो उसको पकड़ के बोलते हैं कि वो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनको शादी करेंगे, and then they get married to them, and the company that they start is a shell company, and in that shell company both will be partners. And what will that company be? It will be about so many things, education, mind, India, make in India, blah 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 blah. Okay, and all this man has to act as like a bakra. She will go selling herself, and money will be laundered. यस और यही इनका मोडस ऑपरेंडी कि ऐसे बिजनेसमैन से शादी करेंगे, जैसे कि शिल्पा शेट्टी ने करी थी राज कुंद्रा से। कौन जानता था उसको, वो दुबई में क्या करता है, कैसे करता है। आज तक राज कुंद्रा का बिजनेस क्या किसी को पता नहीं है। अभी फोन का पता चला है कि ये किसका बिजनेस है, फोन वेबसाइट चलाना, ठीक है। लेकिन ये मौनी ने जिससे शादी करी, अब ये क्या करेंगे, बकरे वहां से ले आते फंसा के, बॉलीवुड वाले उनके नाम पे शेल कंपनी खोलते हैं दुबई से, और गल्फ कंट्री से पेट्रो डॉलर्स जो है उसमें आते हैं, और इनका जो है ये पूरा चलता है। ये तो पपेट है। मौनी रॉय जो पूरी प्लास्टिक है, जिसने आप आज से 15 साल पहले की जब इंडस्ट्री में एंटर हुई, उसने अपनी पूरी बॉडी को प्लास्टिक बॉडी बना के रखा हुआ है। वो पूरी मतलब उसने ऑपरेशन करा कर अपने पूरे लुक्स चेंज किए है। ये पैसा आता कहाँ से है? मौनी रॉय ने तो कोई ऐसी कोई फिल्म नहीं करी। एक आधी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आई थी, वो भी लो बजट फिल्म थी। और जनरली मैंने तो ये सुना है कि ये लोगों को टीवी पे दिखने को मिल जाए वही बड़ी बात है, उसके लिए ये फ्री में भी काम करती है, खाली सोना पड़ता है इनको प्रोड्यूसर के साथ में। Absolute. तो इतना कहाँ से आता है?
और इतनी जो ये हैवी, इतनी महंगी मैरिजेस ये लोग करते हैं, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? इतना सब दिखावा, इतना सारा शोशा, इतना पैसा, बिजनेस तो है नहीं। अब जैसे कि टाटा है, अंबानी है, इनके तो पब्लिक डोमेन में है इनकी बैलेंस शीट, तो इनकी बैलेंस शीट से पता चलता है कि भाई इनकी इनकम क्या है। अडानी की इनकम क्या है उनकी बैलेंस शीट से पता चलता है, एलएनटी की इनकम पता चलती है, यू नो, तो ये सारी इंडस्ट्रीज की इनकम पता चलती है, इनकी क्या है? So, Kajal, I know that you're doing a very big job. I have seen you speaking, to a very large audience about Love Jihad. You are educating people, and people are listening to you because your voice is a strong voice, And we want more women like you, who not only expose the truth, but get to the facts. When you talk with facts, then people start believing you. मीना जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि पिछले एक साल से या 8-9 महीने से मैंने ये शुरू करा है कि मैं अब स्कूल और कॉलेज में जाके बच्चियों से, और ऐसी मेरी पब्लिक गैदरिंग होती है उसमें मैं स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो बनाती हूँ कि आप अपने घर की बेटियों को लेके आइए मेरे प्रोग्राम्स में। और वो जो ऐसी बड़ी गैदरिंग अब हम लोगों की शुरू हो गई है, और उसमें यंग लड़कियां आती है, हम उनसे ये खुल के बात करते हैं, उनको बताते हैं लव जिहाद। आप बिलीव नहीं करेगी, वो लड़की आके मुझे कहती है कि दीदी आज तक हमें किसी ने ऐसा समझाया ही नहीं, गलती बच्चों की नहीं है। इसलिए मैंने अब शुरू कर दिया ये काफी टाइम से कि मैं कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जाके हमारे बच्चों को ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर मैं ये बात बताऊं। इवन मैं साउथ में जाती हूँ, मैं तेलंगाना में जाके वहाँ की कॉलेज में बच्चियों को ये अवेयरनेस कैंपेन हम करते हैं और बताते हैं बच्चियों को लव जिहाद के बारे में। Kajal, the place where it started first from was Kerala. And there were many Hindu boys who were very brave, who exposed this, and they were they did such a massive job of exposing this, and many people were caught. So hats off to them. So it started with Kerala. Yeah, I know, and even the judgment of Justice Shankaran, 2009, where he coined that word love jihad. Yes. And even अभी केरला के बिशप ने ये बात कही है कि वहां पे ईसाई लड़कियों के भी धर्मांतरण हो रहे हैं, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये कंट्री तभी सेफ है जब यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है, इसलिए इसको हिंदू कंट्री भी घोषित करिए जल्द से जल्द, नहीं तो उनको भी पता है, क्रिश्चियंस को भी पता है कि वो भी खत्म हो जाएंगे। Question for you, Tom Jerry says, Kajal madam, do you know any details on the murder of SSR Disha? What is the reason why they were killed? Not only them, but 100 more were killed, and they silenced the truth. Please shed some light. ओके, जो ये टॉम जेरी जो है, उन भाई से मेरा एक स्पष्ट मैं आपको बताती हूँ कि मैं काफी ऑफिसर्स के साथ बैठती हूँ और जो सिविल सर्विस में है, और उनसे ये केसेस डिस्कस करते हैं। और जब मैंने ये अभी आरवीएस मनी सर के साथ भी बैठी थी मैं, और मैंने पूछा कि इतना दिन हो गया क्यों कोई ये सुशांत सिंह का कोई कातिल पकड़ा नहीं गया, और सबको पता है किसने करा है। तो उन्होंने, इसका एक ड्यूरेशन होता है, पहले फर्स्ट 1 वीक इज द क्रूशियल। इन्होंने क्या कर दिया कि वहां की लोकल पुलिस ने जानबूझ के सारे सबूत मिटा दिए, वो खोल दिया रूम, और वो पब्लिक प्लेस बन गया, उसको वहां पे पार्क की तरह लोग आ रहे जा रहे, जो कि मतलब कि ये क्राइम सीन है, वो क्राइम साइट रही नहीं। तो वहां पे इतने सारे मिक्स हो गए डीएनए कि मुश्किल हो गया पता लगाना, और वो पूरा क्लीन, उसने तो धो धा के पूरा घर क्लीन करवा दिया था उसके ऑनर ने 1 वीक के अंदर ही। और सेम डे सुशांत का, अब देखो कि जो उसका पोस्टमार्टम हुआ था, सुबह उसकी डेथ हो रही है, शाम को उसका अग्नि संस्कार भी हो रहा है। और अब उसके सामने देखो, नेचुरल डेथ है इसकी, सिद्धार्थ शुक्ला की, लेकिन उसका पोस्टमार्टम और नेक्स्ट डे उसका अग्नि संस्कार की विधि हुई। तो कोई भी ऐसी सुसाइड केस में सेम डे होता ही नहीं है, कितने सारे उसके रिपोर्ट्स निकलते हैं। तो ये पूरा प्रोपोगेट किया। और अब आप भूल जाओ इसमें, मतलब आप स्पेशल क्राइम ब्रांच वालों को ले लो, सीबीआई आ जाए, कोई भी सरकारी डायरेक्ट उसमें बॉडी आ जाए और इसकी जांच करे, वो सफल होंगे ही नहीं, क्योंकि सबूत सारे मिटा दिए गए। तो बहुत कठिन है अब सुशांत के आरोपियों को पकड़ना, लेकिन ये अपनी मौत ही मर ही रहे। देखो अभी बॉलीवुड की फिल्में कोई नहीं देखता है,
इनको नुकसान हो रहा है, इनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। अब ये आलिया और रणबीर कपूर जो है शिव जी के मंदिर जाके माथा टेक रहा है, आरआरआर की कॉपी कर रहा है, क्योंकि वो लोग लिटरली गंगा आरती करते हैं, पूजा करते हैं। साउथ का अपना एक ह्यूज हेरिटेज कल्चर है, और अच्छा है कि साउथ वाले इन बॉलीवुड वालों को ना घुसाए, वरना वो उनका कल्चर भी स्पॉइल कर देंगे। इन्होंने आलिया भट्ट को लिया है, बहुत बड़ी गलती करी है। साउथ में क्या हीरोइनों की कमी है? यहाँ अच्छी मैं हीरोइंस है। एक स्मॉल पीस ऑफ न्यूज में बताती हूँ कि आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम में राजामौली को ब्लॉक किया है क्योंकि उसने उसका रोल कट किया है आरआर में। हाँ कट। हाँ तो अच्छा किया, राजा मौली को देर से ही सही अक्ल तो आई कि इन बेवकूफों को ज्यादा लेकर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, और ये लोग आएंगे तो हमारी फिल्में पिट जाएगी। तो बॉलीवुड वाला तो अपनी मौत मरेगा। वो कर्मा है ना, देखिए मैंने इयररिंग्स जो है वो कर्मा की पहनी है, इफ यू कैन सी। तो ये जो कर्मा है ना, कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। तो इनका कर्म, इनके कर्म से ये लोग मरेंगे। ये अपनी कब्र खुद खोदे और ये खुद ही उसमें गिरेंगे और ये मरेंगे उसी मौत। तो अभी आप इनकी देखो कि ये फिल्म आई, अक्षय कुमार अभी अभी एक फिल्म फेस्टिवल में अभी बोला 2 दिन पहले कि हमारी फिल्म कश्मीर फाइल ने पिट दी, हमारी फिल्म किसी ने देखी नहीं। आप देखो इनकी हालत क्या हो गई है। ये बच्चन पांडे, वो जमाना गया जब लोग बच्चन पांडे नाम सुन के पागल हुआ करते थे। अब तुम्हें कोई नहीं पूछता है, तुम्हें कोई। अब आप आरआरआर की 1 डे की कलेक्शन कुछ 250 करोड़ है, 1 डे की, एक दिन की। तो आप देखो लोग कैसे पसंद करते हैं, क्योंकि उनका कल्चर, वो जो फिल्म में शुरुआत ही उनका हीरो भगवान की आरती कर रहा है, धोती पहन रहा है, इंडियन कल्चर और हेरिटेज को कितने गौरव से ये लोग दिखाते हैं। तो लोगों को वो पसंद आ रहा है, इस जनरेशन को वो पसंद आ रहा है। और यही वो बॉलीवुड वाले थे जो साउथ को नीचा दिखाते थे और इनका मजाक बनाते थे आज से 15 साल पहले। और अब ये वहां पे भीख का कटोरा लेके जा रहे हैं कि प्लीज हमें भी रोल दे दो, थोड़ा सा छोटा मोटा ही रोल सही हमें दे दो। अब इसकी ब्रह्मास्त्र आ रही है आलिया भट्ट की। इसको क्या लगता है कि मंदिर में, शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने से हम क्या आपकी फिल्में देखेंगे? आप वही लोग हो जो हमें ज्ञान देते हो कि दूध शिवलिंग पर मत चढ़ाओ, वेस्ट हो रहा है, पानी मत चढ़ाओ, वेस्ट हो रहा है। होली पे हमें कहते हैं पानी बचाओ, दिवाली पे हमें कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण हो रहा है। Saumil is asking you, Kajal man, can you please speak about Hindu girls being targeted by Christian missionaries as well? They don't kill like jihadis, but they offer money or jobs for conversion, and also boys are being trapped. मैं अभी एक मेरा प्रोग्राम होने वाला है, आदिवासियों का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। एक मैंने आदिलाबाद में भी करा था, वहां पे भी इसी तरह से इस जो क्रिश्चियन मिशनरी वाले हैं वो कन्वर्जन करते हैं आदिवासियों का। अभी अभी बहुत से आदिवासियों की घर वापसी करवाई है गुजरात में, और पूरे भारत में भी वापस उनकी घर वापसी शुरू हो गई है, जिन आदिवासियों को क्रिश्चियन ने कन्वर्ट करा था। और अभी हम लोग आदिवासियों में ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करके अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और उनको हिंदू संगठनों से जोड़ रहे हैं, ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, जॉब हो, मेडिकल हो, जो भी हो। आप बिलीव नहीं करोगे, संघ ने एक वहां पे एकलव्य फाउंडेशन बनाया है आदिलाबाद में, वो पूरा आदिवासी बेल्ट है। वो एकलव्य फाउंडेशन इनको ऑर्गेनिक खेती करना सिखाता है। आज आदिलाबाद के आदिवासी ऑर्गेनिक खेती कर कर अच्छा कमा रहे हैं। उनके वहां पे मेडिकल सेंटर खड़े कर दिए कि उनको मेडिकल, जो कहते हैं ना संघ क्या करता है, ये मैं आपको बताती हूँ संघ क्या करता है। संघ ग्राउंड पे इतना काम कर रहा है कि घर वापसी के बीच सारे जो हो रहे हैं वो सारे हिंदू संगठन मिलकर उसमें कर रहे हैं सहयोग, और ये पूरी तरह से काम वापस जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन देखिए ईसाई मिशनरी वाले जो है एक राइस का बैग दे के कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारी हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। लड़कियां ईसाइयों की भी जा रही है। अब आप केरल में देखो तो ईसाइयों की लड़कियां मुस्लिम्स लेके जा रहे हैं और लव जिहाद हो रहा है वहां पे। लेकिन जहां पे ये मेजोरिटी में जो जो कास्ट है, सपोज बौद्ध है, सिख है, सिखों की लड़कियां पंजाब में जा रही है मुस्लिमों में। तो जहां पे जो मेजोरिटी है उनकी लड़कियां जा रही है मुस्लिम्स में, क्योंकि ये इनकी मॉडेस्ट ऑपरेंडी है। तो इसी वजह से हम लोग अभी आदिवासियों में ज्यादा काम कर कर इनकी फिर से घर वापसी करा रहे हैं और इनको हिंदू संगठनों से जोड़ रहे हैं, ताकि इनको जॉब, मेडिकल और ये सारी जो है मतलब बेसिक जो इनकी नीड है वो पूरी हो सके। आपको मैं बताती हूँ, एक स्कूल है, अभी उस स्कूल पे हमारा वो स्टिंग चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगी, अहमदाबाद की वो स्कूल है, और वो क्रिश्चियंस लोग चलाते हैं। उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ये क्या करते हैं मालूम है कि 2 लकड़े हैं, एक लकड़ी पे ओम लिखा है, एक लकड़ी पे क्रॉस बनाया है। ऑब्वियसली जो क्रॉस वाली लकड़ी है वो हैवी लकड़ा है,
और जो ओम वाली लकड़ी है ना, वो जान करके अंदर से सड़ी हुई लकड़ी डालते। फिर छोटे छोटे बच्चों को क्या करते, उस पे 2 रैट छोड़ देते, चूहों को। अब जैसे चूहा ओम वाली लकड़ी पे चढ़ेगा, वो अंदर डूब जाता है पानी के पॉन्ड के अंदर, और चूहा भी डूब के मर जाता है। और जो क्रॉस वाली लकड़ी है, उस पे चूहा छोड़ते हैं, वो तो हैवी लकड़ी है, तो वो तो ऊपर फ्लोट ही करेगी ना, तो वो अंदर जो है डूबता नहीं है। तो बोलते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बताओ कौन से भगवान बचाने आए, ओम वाले आए या अपने जीसस आए, किसने बचाया? तो सब बोलते, छोटे छोटे बच्चे, हाँ केजी, सीनियर केजी के, जीसस ने बचाया, जीसस ने। सी ऐसे स्कूल वाले कर रहे हैं। पेरेंट्स से निवेदन है, भाई कॉन्वेंट में मत भेजो अपने बच्चों को, थोड़ी बच्चों की पढ़ी हो, उनके भविष्य की पढ़ी हो, इस देश की और अपने धर्म की पढ़ी हो, तो अपने बच्चों को अपनी स्कूलों में भेजो। Absolutely. तो इस तरह से ये काम करते, बताओ आप, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, ये इनकी बहुत स्मार्टली काम करते हैं। ये मीठी बोली से कन्वर्ट करते हैं, वो बंदूक की गोली पे कन्वर्ट करते हैं। Absolutely. करते दोनों कन्वर्ट है। Astro is asking one question: why Andhra has made Urdu a second language, which is already flourishing in many countries and is the language of invaders, instead of making Tulu or any other Indian language? आई थिंक ये एक स्टेट का मैटर होता है, और स्टेट के लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आप हर बार सरकारों पे निर्भर मत रहिए। मैं कहती हूँ समाज का आंदोलन होना चाहिए। जब तक समाज मिलकर आंदोलन कर कर जागरूकता नहीं लाएगा, हिंदू टेकन फॉर ग्रांटेड लेके नेता अपनी जेब में लेके बैठेगा हिंदू को। हिंदू टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, कई नेताओं को ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाएगा, तो उनको बता दीजिए कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये वो हिंदू है। हम महात्मा गांधी वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे कि हमने महात्मा गांधी पर अंधा भरोसा कर दिया और गांधी ने जो बोला वो पत्थर की लकीर। सॉरी, ये नया हिंदू है, युवा हिंदू है, आज का हिंदू है, जिसको अपने धर्म और मेरे फ्यूचर जनरेशन की, मुझे मेरे बच्चों की जनरेशन की पड़ी है। मेरे बच्चे टोपी पहनकर कलमा और नमाज पढ़ेंगे, मैं वो एनवायरमेंट नहीं देना चाहती हूँ अपने बच्चों को। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी सेक्युलर सरकारों का आप विरोध करिए। कोई भी हो वो नेता, किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लोकल रिलीजियन पार्टी का, रीजनल पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, अगर वो गलत कर रहा है, समाज का आंदोलन खड़ा होना चाहिए। किसी पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आरएसएस या वीएचपी आके करेंगे वो भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, बीजेपी करेगी वो भी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आप समाज का आंदोलन बनाइए, और वो समाज का आंदोलन बनेगा तो आपकी सुनी जाएगी। Absolutely. There are many more questions coming, Kajal, as we speak, because you're speaking with such a strong conviction, and we know exactly what you're talking about. If we are not careful now, we will be the ones who will suffer, because we have always been bending backwards. Now it is not the time to take it anymore, because our next generations will suffer because of this. So it's a very strong voice that you are lending to our viewers, and it's a very clear voice. And that's why, Kajal, I like having you on our channel, because see what you say, is so much of truth in it that we need to, all of us, as you say, it is not only the government that has to work. It is we, the people, who have to give our voices in a very strong way to protect our children. So thank you so much, Kajal, for giving me your time. And viewers, let me tell you, this lady is busy most of the time because she's traveling all over and spreading this awareness to different parts of India. And it's so important that most of us should do exactly what she's doing if we need India to become aware, and more conscious how to preserve सनातन धर्म। मीना जी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ। पहले मैं जब अवेयरनेस लाती थी, जब मैं घर से निकली थी, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम कैसे करें, हम किसी को जानते नहीं, लोग हेजिटेट होते हैं। बैक इन देयर माइंड ये चलता है कि हमारी आवाज कौन सुनेगा। पहले मेरी भी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। पहले मैं जब लोगों को समझाती थी, जो मैं मेहनत, अभी मैं हजारों की पब्लिक में जितनी मेहनत करती हूँ, उतनी में एक बंदा भी कोई मुझे सुनेगा तो मैं करती हूँ। उसी पूरी एनर्जी के साथ उसको लव जिहाद और इलीगल एनक्रोचमेंट पे समझाती हूँ, या कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा समझाती हूँ। धीरे धीरे मुझे 2 लोग सुनने चालू हुए, 4 लोग सुनने शुरू हुए। व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट, मेरा ग्राउंड का एक्टिविटी के बारे में बता रही हूँ। जब हम ऐसे समाज में जब हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि आसपास की भीड़ को इकट्ठा करके हम बोलते हैं। शुरुआत में मुट्ठी भर लोग आते थे, अब हजारों की संख्या होती है। 10-10, 15-15 हजार तो सिर्फ महिलाएं होती है जो स्पेशल सुनने आती है मुझे।
इस मुद्दे पे, लव जिहाद के मुद्दे पे। पुरुष भी इतना, मतलब जो मेल्स है वो भी इतना ही मतलब सुनना पसंद करते हैं। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई 500 लोग हैं तो मैं नहीं जाऊंगी इवेंट में, या 5000 है तो ही जाऊंगी, नहीं। अगर 100 भी लोग हैं या 50 भी लोग हैं तो भी मैं जाके उनको समझाती हूँ, और इसी एनर्जी के साथ समझाती हूँ। अब मुझे हजारों की पब्लिक सुनती है, अब मेरे प्रोग्राम में 15,000 20,000 लोग होते हैं जो मुझे सुनते हैं, और बड़े इवेंट्स करते हैं हम। लेकिन मैं आज की तारीख में भी, अगर मेरे पास समय होता है, और छोटे इवेंट्स भी आते हैं कि जिसमें 1000-1200 लोग भी होते हैं, तो भी मैं जाती हूँ। 500 होते तो भी, अभी मेरा एक सूरत में है, सिर्फ 500-600 लोग हैं, मैं फिर भी 800 किलोमीटर का ट्रेवल करके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो 500 लोगों की मैं लाइफ में कुछ चेंज ला पाऊंगी। Absolutely. तो लोगों को, मुझे लगता है कि आप किस दिन में एक इंसान के साथ ही सही, भले अपने बच्चों के साथ, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, या जहां काम करते हैं वहां पे एक इंसान को आप हर रोज इस विषय पे बात करेंगे, बदलाव आएगा 100%। Absolutely. And also, my request to you, Kajal, is that see, spare some time for our channel also, because most of the viewers are from abroad, and many of them are only learning about things that are happening in India, and they are consciously trying to change it. And it is voices like you that matter. जी मीना जी, डेफिनेटली श्योर, आई विल। ट्रैवल की वजह से होता क्या है कि मैं नेटवर्क इशू में होती नहीं है, तो ऐसा मजा नहीं आता है हमें लाइव करने में, क्योंकि अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बट आई एम रियली, मतलब सॉरी कि पिछली बार भी हम ज्वाइन होके चले गए थे और आ नहीं पाए थे, ज्यादा वक्त दे नहीं पाए थे। बट आई विल ट्राई कि अब जब भी मैं घर पे, अभी भी 2-3 दिन के लिए घर आई हूँ, तो मैं आज आपसे जुड़ गई हूँ। सो 1 तारीख से मेरा फिर से ट्रैवल शुरू हो रहा है। बट मैं जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं के साथ जुड़ना, और आप जैसी स्ट्रॉन्ग महिला से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। आपकी विशेष, आपकी ब्लेसिंग्स, एक महिला के तरीके से आपका अपना एक ऑरा है, उस ऑरे का थोड़ा सा फायदा मुझे भी मिलता है, कि मेरा भी ऑरा ज्यादा बड़ा और सशक्त बनता है जब किसी महिला का मुझे समर्थन या सपोर्ट मिलता है। इन अ सेम वे ये एक्सचेंज है, और हम अगर महिला एक दूसरी महिला के साथ खड़ी नहीं होगी तो कौन खड़ा होगा। और यही सोच के मैं बच्चियों को भी रेस्क्यू करती हूँ कि आखिर वो है तो स्त्री जाति की ना, तो अगर मैं ही अपने समाज को नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा। कौन बचाएगा। Absolutely. So on that note, we will end this show. Thank you, so Meena much. ji. Thank you so from much the for this viewers. wonderful discussion, and thanks a lot, Meena ji. Good night. Good night. Thank you. Namaste. Good night. Jai Shri Krishna. Good night.